Welcome students. Now the topic of today is debugging. Debugging is made up of two words, de and bug. Bug means error. So debugging is the process of identifying and localizing the errors in your program. That means once you have written your program and if there is an error, so debugging is the process of identifying and finding the location of the error. So debugging in simple English means remove bugs from a program. An error causing disruption in programs running or in providing right output is program bug. That is an error which is causing the program to do not produce its desired output or even stop its execution is referred to as program bug. Debugging involves rectifying the code so that the reason behind the bug get resolved and thus bug is also removed. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कोड को रेक्टिफाई करता है और एरर के आने के पीछे के रीज़न को आइडेंटिफाई करता है जिससे आप आसानी से एरर्स को एक तरीके से रिमूव कर सकें और प्रोग्राम को करेक्ट कर सकें. In this section, we will talk about general debugging techniques and how you can debug code in Python. But before talking about those techniques, it is important for you to know the errors, error type, and what caused them, etc. So, first of all, we are going to talk about errors and exceptions. ये एक डेफिनेशन इसकी दी गई है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि डिबगिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द प्लेस ऑफ एरर, कॉज ऑफ एरर एंड करेक्टिंग द कोड अकॉर्डिंगली. ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोकेट करते हैं एरर को, उसके कॉज को फाइंड करते हैं और उसके बाद हम उसको करेक्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एरर्स इन अ प्रोग्राम. See, an error, sometimes called as bug, is anything in the code that prevent a program for compiling and running correctly. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके कोड में हो जिसके कारण आपका प्रोग्राम कंपाइल ना हो पा रहा हो या प्रॉपरली रन ना कर पा रहा हो, that is known as error or bug. There are broadly three types of error: कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर. तो देखो, कंपाइल टाइम एरर वो एरर होते हैं जो कंपाइलेशन के दौरान मिलते हैं. रन टाइम एरर्स आर दोज एरर विच वी कैन आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन. एंड लॉजिकल एरर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ एरर जिनको बहुत हार्ड होता है आइडेंटिफाई करना. ये आपके प्रोग्राम में हों तो आपका प्रोग्राम रन कर भी सकता है लेकिन जो आउटपुट है वो डिज़ायर्ड नहीं मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम कंपाइल टाइम एरर. तो एरर्स दैट ऑकर ड्यूरिंग कंपाइल टाइम आर कंपाइल टाइम एरर. देखो सिंपल है, ऐसे एरर्स जो कंपाइलेशन के दौरान मिलते हैं या कंपाइलेशन के दौरान आते हैं, ऑकर होते हैं, दोज आर रिफर टू एज कंपाइल टाइम एरर्स. व्हेन अ प्रोग्राम कंपाइल्स इट्स सोर्स कोड इज चेक्ड for whether it follows the programming language rule or not. Two type of error fall into this category of compile time error: syntax error and semantic error. तो पहले हम बात करेंगे syntax error की. तो syntax नाम से क्लियर है कि प्रोग्राम का जो syntax है उसमें अगर आप कभी कोई गलती करते हैं तो that is referred to as syntax error. तो syntax error occur when the rule of programming language are misused. When a grammatical rule of Python is violated, for example, observe the following two statement. For example, we have written x less than dash y multiply by z. तो यहाँ पे हम करना ये चाहते थे कि y और z को मल्टीप्लाई करके हम x में असाइन करना चाहते थे, लेकिन इंस्टीड ऑफ यूजिंग इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या किया है, एरो यूज़ किया है. तो एरो बनाया है और यूज़ किया है, तो ये एरर है.
ऐसे अगर हमने लिखा इफ़ x इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाई वाई, तो दैट इज आल्सो a syntax error. So these two statements will result in syntax error, as arrow is not an assignment operator in Python and single equal is an assignment operator, not a relational operator. Also, if a block statement, it require a colon at the end of it which is missing above. जैसे if स्टेटमेंट के बाद हमको कॉलन साइन लगाना होता है जो यहाँ पे नहीं दिया है, तो ऑल दीज रेफर्स टू एज सिंटैक्स एरर. तो जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कॉलन साइन होना चाहिए एंड यहाँ पे आपको डबल इक्वल्स टू यूज़ करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर ना हो. तो these are referred to as syntax error. Therefore, the correct statement will be as follows: x is equals to y multiplied by z. That means we are multiplying y and z and assigning its result to variable x. And in second case, we need to write if x double equals to x multiplied by y and then colon sign. So one should always try to get syntax right the first time, as a syntax error wastes computing time and money as well as programmers time and it's preventable. तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के चलें अपने प्रोग्राम को बनाते समय, तो उस केस में आप ये एश्योर कर सकते हैं कि आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर मिनिमम होगा. देखो, वी कैनॉट से कि हम अपने प्रोग्राम को पूरी तरीके से सिंटैक्स एरर फ्री रख सकते हैं, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी कैन मेक मिस्टेक्स, बट इफ़ वी फोकस ऑन द कोडिंग more precisely, then we can assure that the errors are minimum. Now next thing is semantic error. So semantic errors occur when statements are not meaningful. For instance, the statement Sita plays guitar is syntactically and semantically correct, as it has some meaning, but the statement guitar plays Sita is syntactically correct as the grammar is correct, but semantically it is incorrect. Similarly, there are semantic rules of programming language. Violation of these rules result in semantical errors. तो ये इंग्लिश का जो एग्जाम्पल दिया है कि गीत सीता प्लेस गिटार, मतलब सीता गिटार बजा रही है, ये सही है, सिमेंटिकली भी सही है, लेकिन अगर हम ये लिखें गिटार प्लेस सीता, मतलब गिटार सीता को बजा रही है, तो दैट इज़ सिंटैटिकली करेक्ट बट नॉट सिमेंटिकली करेक्ट. तो इसी तरीके से हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है. फॉर इंस्टेंस, अगर हमने लिखा x मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल्स टू z, तो यहाँ पे आपको सिमेंटिकल एरर मिलेगा, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे वो इस तरीके से नहीं हो सकता. मतलब असाइनमेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के स्टेटमेंट का होता है. तो इफ़ वी हैव रिटन z इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाई वाई, then it would be correct. But if we are writing x multiply by y is equals to z, then it is not correct. It is semantically not correct. तो इसको मैं आप लोगों को क्यू पाइथन में रन करा के दिखा भी देता हूँ. तो उसके लिए ये पहले से एक प्रोग्राम बनाया हुआ था मेरा, मैं इसको रिमूव करूँगा यहाँ से. नाउ सपोज़ कीजिए कि हमारे पास वेरिएबल है y and the value of y is equals to 10, and then we are having a variable z, and now the value of z is equals to 20. Now I am writing x and then मैं एरो के साइन को बना रहा हूँ जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ था, x एरो y मल्टीप्लाई बाई z. अब अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ प्रिंट एंड देन इन ब्रैकेट x और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ,
तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नेम एरर आ रहा है, एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट था आपका एक्स वाला, एक्स इज एरो वाई प्लस जेड, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एरर आपको मिल रहा है। तो अगर हम इसको करेक्ट करें, तो करेक्ट करने के लिए अगर मान लो हमने ये लिख दिया कि y मल्टीप्लाई बाई z इज इक्वल्स टू x, और फिर हम अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए फिर सिंटैक्स एरर आ रहा है, कांट असाइन टू ऑपरेटर। तो ये सिंटैक्स एरर कैटेगरी में आ रहा है बट इट इज़ सिमेंटिकली नॉट करेक्ट। तो अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो इसके लिए जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे दैट वुड बी x इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाई z। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, नाउ यू विल गेट 200 एज अ रिजल्ट, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है दैट इज़ अपीयरिंग एज 200। तो दीज आर नोन एज कंपाइल टाइम एरर। ये वो एरर हैं जो कंपाइलेशन के दौरान मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर, तो सम टाइम इवन इफ यू डोंट इनकाउंटर एनी एरर ड्यूरिंग कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, your program does not provide the correct result. This is because the programmer's mistaken analysis of the program they are trying to solve. तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप प्रोग्राम रन कराएं और कहीं पे भी कोई एरर नहीं आया, ना रन टाइम पे कोई एरर आया, ना ही कंपाइल टाइम पे कोई एरर आया, प्रोग्राम आउटपुट भी जनरेट कर रहा है लेकिन डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है। ये इसलिए होता है कि प्रोग्रामर ने प्रोग्राम की एनालिसिस करते समय, उसको सॉल्व करते समय कुछ गलती कर दी है। तो सच एरर्स आर लॉजिकल एरर, फॉर इंस्टेंस एन इनकरेक्टली इम्प्लीमेंटेड एल्गोरिदम और यूज ऑफ वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजेशन और unmarked end of loop or wrong parameters passed are often the hardest to prevent and locate. These must be handled carefully. Some logical errors are treated as subcategory of runtime errors. तो कुछ लॉजिकल एरर को हम रन टाइम एरर के कैटेगरी में भी, सब कैटेगरी में भी रखते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो अब मैं आपको नेक्स्ट लेसन में पढ़ाऊँगा, जब आपको लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सिंपली ये समझिए कि प्रोग्रामर को करना ये था कि उसको एक्स वाई और जेड का एडिशन निकालना था, तो उसको लिखना था कि x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। लेकिन प्रोग्रामर ने क्या किया, गलती से उसने मिस्टेक कर लिया और उसने लिख दिया y माइनस जेड, मतलब इंस्टीड ऑफ प्लस सिंबल उसने यहाँ पे माइनस सिंबल यूज़ कर लिया। अब अगर हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो प्रोग्राम तो रन करेगा ही करेगा, आउटपुट भी हमारा जनरेट होगा, लेकिन जो आउटपुट है ये आउटपुट 30 आना चाहिए था, लेकिन ये आउटपुट क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। इसका मतलब ये न तो रन टाइम में आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ना ही कंपाइल टाइम में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन ये एरर आपके प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और वो एरर क्या है कि प्रोग्रामर ने एडिशन के जगह पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ कर लिया था। तो ऐसे जो एरर्स होते हैं जो प्रोग्रामर की गलती के कारण होते हैं, कि लूप बनाया, लूप को बंद नहीं किया, या कोई स्टेटमेंट है जो लूप से बाहर हो गया, इनफाइनाइट लूप हमारा बन गया, तो ये सारे जो एरर्स हैं दोज आर टर्म्ड एज लॉजिकल एरर्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रन टाइम एरर्स। तो एरर्स दैट ऑकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम आर रन टाइम एरर्स। These are harder to detect errors. Some runtime error stop the execution of the program, which is then called program crashed or abnormally terminated. तो ऐसे एरर्स जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान मिलते हैं, दोज आर टर्म्ड एज रन टाइम एरर। ये सबसे टफेस्ट एरर होते हैं जिनको डिटेक्ट करना
बहुत ही मुश्किल होता है. And even there are few runtime error which can abort your execution. At that time it is referred to as program crashed or program abnormally terminated. Most runtime errors are easy to identify because the program halts when it encounters them. Example, an infinite loop or wrong value of different data type other than the required is input. Normally, programming language incorporate checks for runtime error. So does Python. However, Python usually takes care of such errors by terminating the program, but a program that crashes whenever it detects an error condition is not desirable. And that is why we need to identify and rectify the error. For example, let's suppose कि we are creating the same program here and we want to multiply the value of y and z, but we are not we don't want to pass its value in the program here, and I'm writing input in bracket in double quotes or in single quotation mark, enter first number, quote close and bracket close. And in second case, instead of writing something else, I am writing input and then in bracket in quotes enter second number, कोड बंद किया, ब्रैकेट क्लोज किया, डन किया, रन कराया. Into first number I'm inputting the value here 10, and into second number, एक मिनट, ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आई थिंक गलत हो गया है, मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. Into first number I am writing 10, enter की. Into second number I am writing 20. अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्राम में एरर आ रहा है. प्रोग्राम में एरर क्यों आ रहा है कि यहाँ पे हमने इनपुट स्टेटमेंट का तो यूज़ किया था, वैल्यू इनपुट भी ले रहा है, लेकिन ऑपरेशन हमारा परफॉर्म नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब भी हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो जो वैल्यू इनपुट होती है वो स्ट्रिंग टाइप की होती है, और हमें एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए. तो यहाँ पे अगर हम इसको इंट में कन्वर्ट कर दें, मान लीजिए हमने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही ये यहाँ पे भी वी हैव यूज्ड इंट and then bracket, and here also I am pressing a bracket, and then if we execute the program and we are passing the value 10 and then 20, we'll get 200 as a result कि 10 और 20 मल्टीप्लाई होके हमें रिजल्ट देती. बट प्रोग्राम तो हमारा अभी भी करेक्ट है, लेकिन अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, री एग्जीक्यूट करें और यहाँ पे हमने दे दिया 10, तो उस केस में भी जो हमारा प्रोग्राम है वो एरर शो करेगा. तो ऐसे एरर्स को भी हम लॉजिकल एरर के कैटेगरी में रखते हैं. तो लॉजिकल एरर्स वो एरर्स होते हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आइडेंटिफाई होते हैं, और ऐसा हो सकता है उनके कारण प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो या ना हो, लेकिन रन टाइम एरर के अंदर भी वो एज अ सब कैटेगरी में हम रख सकते हैं. तो ये देखिए, ये जो अभी हमने आपको डिस्प्ले किया है कि विदाउट यूजिंग इंट फंक्शन इफ़ वी आर राइटिंग इनपुट एंड देन वी ट्राई टू मल्टीप्लाई द वैल्यूज़, तो दैट कम्स अंडर रन टाइम एरर एज वेल एज लॉजिकल एरर. तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही थी कि जो आपके बुक में दिया हुआ है कि सम टाइम लॉजिकल एरर आर ट्रीटेड एज सब कैटेगरी ऑफ रन टाइम एरर. तो
आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो सिंपली आप ये जान लीजिए कि वो एरर्स जो कंपाइलेशन के दौरान मिलते हैं, कंपाइल टाइम एरर्स, those error that can be identified during the execution time, those are run time error, and those errors जिनके कारण जो आपका desired output है वो जनरेट नहीं हो पाता है, those are termed as logical errors. Now next topic is exceptions. तो देखिए exceptions और error दोनों लगभग सिमिलर टर्म हैं, लेकिन both are different. So errors and exceptions are different but similar but different terms. While error represent any bug in the code that disrupts running of the program or causes improper output, an exception refers to any irregular situation occurring during the execution or runtime which you have no control on. Error in program can be fixed by making correction in the code, but fixing exception is not that simple. तो exceptions वो कंडीशन होते हैं जिन पे हमारा नॉर्मली कोई कंट्रोल नहीं होता है. एरर्स को फाइंड करना, उसको रिमूव करना इज़ ईजी, बट आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एक्सेप्शंस आर हार्ड एज कंपेयर टू एरर्स. So let us try to understand the difference between an error and exception with the help of real life example. For instance, if you operate an ATM, then entering wrong account number or wrong PIN number is an error. For example, आपने कार्ड इंसर्ट किया, उसने आपसे पिन नंबर पूछा, पिन नंबर आपने गलत डाला, that is an error. Now, not that much amount is in account is an exception. कि जैसे आपके अकाउंट में 10,000 है और आप विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं 10,500, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो अकाउंट है उससे पैसा आप नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज insufficient amount is there in your account. So at that time this is termed as exception. And suppose ATM machine struck is also an exception. कि अगर मान लीजिए आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और किसी कारण से आपका ATM मशीन वर्क करना बीच में बंद कर दिया, तो ऐसे केस में आपका जो पैसा है वो डिडक्ट हो गया, लेकिन आपको वो पैसा नहीं मिला. ऐसे भी कई बार केसेस हो जाते हैं, तो दैट इज़ आल्सो टर्म्ड एज एक्सेप्शन. So you can think of exception is in a program as situation that occur during runtime and you have no control on it. Example, you write a code that opens a data file and display its content on the screen. This program's code is syntactically correct and logically correct too. But when you run this program, the file that you are opening does not exist on the disk. This will cause exception. So the program has no errors but an exception occurred. Some common exceptions that may occur during the program run or execution are being listed in the table below. तो देखिए एक्सेप्शंस, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया और उसके थ्रू आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, उसके कंटेंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेकिन फाइल हमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो ये जो केस है दैट विल शो एक्सेप्शन. आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप उसके कंटेंट को नहीं देख पाएंगे, तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्शंस का एक टेबल बना हुआ है. फर्स्ट थिंग इज EOF एरर. EOF स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल एरर. तो raised when one of the built-in function input hits an end of file condition without reading any data. मतलब इनपुट फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हुआ लेकिन कोई भी इनपुट नहीं प्रोवाइड हुआ, तो इस केस में जो एरर आएगा दैट इज एन एक्सेप्शन. सेकेंड इज IO एरर. IO स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट एरर. तो raised when the IO operation such as print, the built-in open function or a method of a file object fail for input output related reason. Example, file not found, disk full.
ऐसे अगर कभी प्रॉब्लम आते हैं तो ये जो एरर्स आएंगे दोज आर टर्म्स एज IO एरर एंड इज कम अंडर द एक्सेप्शन कैटेगरी. देन आफ्टर नेम एरर, तो रेज्ड व्हेन एन आइडेंटिफायर नेम इज नॉट फाउंड. मतलब आप किसी आइडेंटिफायर को, किसी वेरिएबल को रेफरेंस कर रहे हैं और वो वेरिएबल या आइडेंटिफायर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, देन दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन विल रेज, दैट इज नेम एरर. कि जैसे मान लीजिए आप किसी वेरिएबल को एक्सेस करने जा रहे हैं लेकिन वो वेरिएबल पहले से बना ही नहीं है, तो दैट इज रिफर टू एज नेम एरर. देन आफ्टर इंडेक्स एरर, तो इंडेक्स एरर रेज्ड व्हेन अ सीक्वेंस सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज from a string of a length 4. If you try to read the value of index like 4 or more, that is string 4, string 5 and string -5 etc., will raise exception as legal index for the string is 0 to 3 or -1, -2, -3, -4 only. तो जैसे मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मान लो एक स्ट्रिंग है a और इसकी वैल्यू है मोहन. तो इस केस में क्या होगा कि ये जो मोहन है वो इस तरीके से स्टोर होगा, पहले M, फिर O, फिर H, फिर A एंड लास्ट में N. अब इसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, और रिवर्स इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1, -2, -3, -4, -5. तो अगर ये जो वेरिएबल a है इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 5 है, तो उस केस में जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से लेके 4 तक और -1 से लेके -5 तक ही एग्जिस्ट करेंगे. अब अगर कभी हम A6 को एक्सेस करने की कोशिश कर देंगे तो हमें एरर मिलेगा. अगर इवन हम A5 को भी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे वी विल गेट एन एरर. वाई? बिकॉज इंडेक्स 5 जो है हमारा एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, इंडेक्स 6 भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है. या अगर हम नेगेटिव में A-6 करेंगे तो यहाँ पे आप देखो -5 तक एग्जिस्ट कर रहा है, A-6 को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये जो एरर्स आते हैं दोज आर टर्म्ड एज इंडेक्स एरर एंड इज आल्सो कम अंडर द एक्सेप्शन कैटेगरी. नाउ नेक्स्ट थिंग इज इम्पोर्ट एरर. तो देखिए इम्पोर्ट एरर में कि रेज्ड व्हेन इम्पोर्ट स्टेटमेंट फेल्स टू फाइंड द मॉड्यूल डेफिनेशन और फ्रॉम इम्पोर्ट फेल्स टू फाइंड द नेम दैट इज़ टू बी इम्पोर्टेड. तो जैसा अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आपको मैथ लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो आप लिखते हैं इम्पोर्ट मैथ. तो मैथ में आपने क्या किया, गलती से m को कैपिटल कर दिया तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैथ में m क्या लिखना था, आपको स्मॉल लिखना था. तो चूंकि m कैपिटल हो गया तो ये इस मैथ के लिए सर्च करेगा और ये जो मॉड्यूल है वो आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. तो ऐसे जो एरर आएंगे दोज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्पोर्ट एरर. नेक्स्ट कम्स टाइप एरर. तो देखिए टाइप एरर रेज्ड व्हेन एन ऑपरेशन और फंक्शन इज अप्लाइड to an object of inappropriate type. For example, you are trying to compute the square root of a string value. जैसे कोई स्ट्रिंग वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे, नहीं निकल सकता. कोई स्ट्रिंग वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई और एडिशन आप कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, कॉन्कैटिनेशन और एडिशन. लेकिन अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू है, जैसे मान लो एक स्ट्रिंग वैल्यू है राम, उसमें से आप घटा रहे हैं मोहन, तो उस केस में आपको क्या होगा, एरर मिलेगा. तो दैट कम्स अंडर टाइप एरर बिकॉज दिस माइनस ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ओनली ऑन इंटीजर एंड फ्लोट्स. सो दिस टाइम यू विल गेट टाइप एरर. देन आफ्टर वैल्यू एरर, तो वैल्यू एरर रेज्ड व्हेन अ बिल्ट इन ऑपरेशन और फंक्शन रिसीव्स एन आर्ग्यूमेंट विद एन इनअप्रोप्रिएट वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल इंट में आपको मिला Z10, तो ये वैल्यू एरर रेज करेगा, क्योंकि इंटीजर फंक्शन आपको बताया था मैंने कि इंट फंक्शन में अगर हम वैल्यू डालेंगे 10, अगर सिंगल कोट में भी है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू 10 है तो ये कन्वर्ट कर देगा 10 में. लेकिन अगर हमने पास किया Z10 तो चूंकि Z क्या है, इस ये इंटीजर कन्वर्टेबल नहीं है, एट दैट टाइम इट विल प्रोड्यूस एरर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट एरर टाइप इज जीरो डिवीजन एरर. नाम से ही क्लियर है
कि raised when the second argument of a division or modulo operation is 0. That means you are dividing anything with 0, like 5 divided by 0. तो इस केस में आपको 0 डिवीजन एरर मिलेगा, क्योंकि you cannot divide any number by 0. Then after next is overflow error. तो raised when the result of an arithmetic operation is too large to be represented. तो अगर कोई इतना बड़ा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, तो इस केस में आपको ओवरफ्लो एरर मिलेगा. एंड फाइनली वी आर हैविंग की एरर. तो रेज्ड व्हेन अ मैपिंग एक्चुअली इन डिक्शनरी की इज़ नॉट फाउंड इन द सेट ऑफ एग्जिस्टिंग कीज. तो अगर डिक्शनरी में की हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में जो एरर मिलेगा ये की एरर है. एंड ऑल दीज एरर्स आर टर्म्ड एज एक्सेप्शंस. Now, for example, the following screenshot are showing two different exceptions. So, for example, if you are writing 100 by 0, it will raise 0 division error. And if you write int in bracket single quote में 11ab, तो you will get value error. तो अगर मैं इसको आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ एक बार, मैं कमांड मोड में चलता हूँ, इस प्रॉम्प्ट में नहीं, मैं कंसोल पे जाके अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, ये जितने भी एग्जीक्यूशन मैंने किए थे ये हमारे डिस्प्ले होते रहेंगे, तो इनको हमें बंद करना होगा. दीज आर द डिफरेंट एग्जीक्यूशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एग्जिट फ्रॉम दीज, देन ओनली वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्लोजिंग ऑल द एग्जीक्यूशंस नाउ इन कंसोल मोड. यहाँ पे मान लो मैंने टाइप कर दिया कि मैंने लिखा, पहले मोबाइल को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं सो दैट न्यूमेरिक नंबर्स की आर आल्सो वर्क. तो 10/5 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो रिज़ल्ट आपको मिल रहा है 2.0. लेकिन अगर मैं लिखूँ 10/0, तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा 0 डिवीज़न एरर. तो 0 डिवीज़न एरर डिवीज़न बाई 0, ठीक है. यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नंबर को 0 से, तो दीज आर टर्म्ड एज 0 डिवीज़न एरर. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट एंड देन इन ब्रैकेट सिंगल कोट में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, लाइक मैंने डाल दिया 50, और फिर सिंगल कोट मैंने क्लोज़ किया, ब्रैकेट क्लोज़ किया, आप देखेंगे रिज़ल्ट में आ रहा है 50. लेकिन अगर इसके जगह पे मैंने लिखा इंट इन ब्रैकेट इन सिंगल कोट Z50, अब इस केस में अगर आप देखें यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा वैल्यू एरर, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ वैल्यू एरर आ रहा है. इनवैलिड लिटरल फॉर इंट फॉर बेस 10. तो ये जो एरर्स होते हैं इनको हम टर्म करते हैं वैल्यू एरर. तो प्लीज़ गो थ्रू इट. Now we are moving forward. The next thing that is given here, most common technique to debug an error is to find the point of error and origin of error. तो जो जितने भी कॉमन टेक्निक्स हैं, तो मोस्ट कॉमन टेक्निक टू डिबग एन एरर इज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ एरर एंड द ओरिजिन ऑफ द एरर. दिस इज ऑफन डन बाय प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ every immediate result and of all values. For this purpose, code tracking is one most commonly used technique. Common useful technique for debugging is code tracking.